آپ نے کبھی ایسے باپ کے بارے میں سنا ہے جو اپنی ہی اولاد کے لیے عذاب بن جائے؟ ایسا باپ جس کے سائے میں بچے خوشی نہیں بلکہ خوف سے لرزتے رہیں۔ ہمارا بچپن رنگوں اور ہنسی سے بھرا نہیں تھا، وہ ایک قید خانہ تھا جس کا دروازہ کبھی نہ کھلا۔ ہمارے چہرے ہمیشہ بجھے بجھے رہتے، دوسروں کے گھروں میں ہنسی گونجتی تھی مگر ہمارے گھر میں چیخیں اور سسکیاں قید تھیں۔ والد کا غصہ اتنا شدید تھا کہ خاندان والے تک کہتے، انور میاں سے بچ کے رہنا، وہ تو آتش فشاں ہیں، کب پھٹ پڑے کوئی نہیں جانتا۔ چھوٹی سی بات پر وہ آگ کے گولے بن جاتے۔ نوکری سے واپسی پر پیار کی بجائے گالیوں اور تھپڑوں کی بارش کرتے۔ یہ روز کا معمول تھا۔ ہم بہن بھائی اتنے ڈرے سہمے رہتے کہ صفائی دینے کی ہمت تک نہ رکھتے۔ ہمارے گھر میں خوشی اور آزادی کی اجازت ہی نہ تھی۔ اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے تھے، ٹی وی، فلمیں، تفریح، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قریبی رشتہ داروں کے یہاں جانے کے لیے بھی اجازت درکار تھی۔ گھر کی گھٹن اتنی شدید تھی کہ ہم بہنوں کو دمے کی بیماری لاحق ہو گئی۔ ہم اپنے باپ کے سائے سے بھی چھپنے لگے۔ عید آتی، شب برات آتی، دوسروں کے گھروں میں خوشیاں ہوتی، ہمارے گھر موت کا سا سناٹا چھا جاتا۔ یاد ہے، میں 6 برس کی تھی، عید کے دن بھی والد کا چہرہ پتھر کی مانند سخت رہتا۔ ہم بات کرنے کی جرت نہ کرتے۔ کزنز نئے کپڑے پہنتے، ہنسی مذاق کرتے۔ ہم میلی حالت میں قید خانے کی زندگی جیتے تھے، نہ پارلر، نہ فیشن، نہ ہنسی۔ بدقسمتی یہ کہ خاندان والوں نے سہارا دینے کے بجائے مذاق بنایا۔ کزنز کلاس میں ہمارا تمسخر اڑاتے، یہ لوگ قیدی ہیں، ان کے ابا کو ان پر بھروسہ نہیں۔ ہماری زبانیں بند تھیں، بس رات کو اللہ سے دعا کرتے، یا رب ہمارے ابا کو بدل دے۔ ہماری ماں سب سے زیادہ مظلوم تھی، وہ سب سہ جاتی جیسے جیتی جاگتی مجسم خاموشی ہوں۔ ابا ذرا سی بات پر الزام لگاتے، مہمانوں کے سامنے انہیں ذلیل کرتے اور بعد میں کئی دن تک تانے دیتے۔ والدہ جتنا بھی اچھا کھانا پکاتی وہ نقص نکال دیتے۔ ہم سب کمرے میں سہمے بیٹھے یہ سب سنتے اور ماں کے آنسو دیکھتے۔ ہم 3 بہنیں اور 1 بھائی تھے، یوں ہی دن گزر رہے تھے۔ میں کالج جا پہنچی لیکن والد کے مزاج میں ذرا سا بھی فرق نہ آیا۔ گھر کا ماحول ویسا ہی گھٹن زدہ اور خوف سے بھرا رہا۔ ہم سب بہن بھائی ایک ہی دعا مانگتے تھے کہ کسی طرح اس قید خانے سے چھٹکارا ملے۔ اسی لیے ہم نے پوری توجہ پڑھائی پر لگائی، سوچا شاید تعلیم ہی ہمیں اس اندھیری زندگی سے نکال سکے۔ مگر قسمت نے ایک نیا امتحان ہمارے سامنے رکھ دیا۔ ہمارے والد کو فالج کا حملہ ہوا۔ وہ بستر سے لگ گئے، نہ چل سکتے تھے نہ بول سکتے تھے۔ پتہ نہیں یہ اللہ کی پکڑ تھی یا کچھ اور، لیکن گھر کا نظام بالکل ٹوٹ گیا۔ اب حالات ایسے ہو گئے کہ گھر میں پھاکوں کی نوبت آنے لگی۔ میں اس وقت FSC میں تھی، دوسری بہن میٹرک کر رہی تھی اور ہمارا بھائی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ تعلیم کا بوجھ، بیماری کا بوجھ اور پھاکوں کا سایہ، یہ سب ہم پر ایک ساتھ ٹوٹ پڑا۔ میں اور میرا بھائی، ہم نے گھر کا نظام سنبھالا۔ بھائی نے ہمت کی اور محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ میں نے بھی ساتھ دیا۔ ہمیں خاندان والوں سے کسی مدد کی امید نہ تھی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی ہم سے منہ موڑ چکے تھے۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے ہمارے لیے راستہ بنایا۔ آہستہ آہستہ ٹیوشنز ملنے لگیں اور گھر کا نظام کچھ بہتر ہونے لگا۔ میری والدہ نے والد کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ دن رات ان کے پاس رہتیں، کھلاتیں پلاتیں، تیمارداری کرتیں، مگر ان کی حالت نہ بہتر ہوئی نہ ہی مزید بگڑی، جیسی تھی ویسی ہی رہی۔ وہ بستر پر ہی مقید رہے اور یوں گھر کی ساری ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر آ گئیں۔ اللہ کا شکر ہے، مشکلوں اور محرومیوں کے باوجود ہم سب گھر والے نماز پابندی سے پڑھتے تھے۔ ہمیں یقین تھا کہ دعا دروازے کھلتی ہے۔ ہم دن رات اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ ہماری زندگیوں کو آسان کر دے، ہماری مشکلیں آسانی میں بدل دے۔ پھر وہ دن آیا جب ہماری دعائیں رنگ لانے لگیں۔ میں نے FSC بہت اچھے نمبروں سے پاس کی۔ نتیجہ آیا تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ پھر ایک بڑی خوشخبری ملی، میرا ایڈمیشن میڈیکل کالج میں ہو گیا۔ وہ لمحہ میری ماں کے لیے سب سے قیمتی تھا۔ ان کی آنکھوں میں پہلی بار سکون کی جھلک دکھائی دی۔ ادھر میرے بھائی کے لیے بھی اللہ نے راستہ بنایا۔ کچھ عرصے بعد اسے ایک پرائیویٹ فرم میں نوکری مل گئی۔ وہ دن رات محنت کرتا رہا اور آخرکار باہر چلا گیا۔ اب میرے تعلیمی اخراجات کی فکر بھی ختم ہو گئی، کیونکہ میرا بھائی باقاعدگی سے سب سنبھالنے لگا۔ یوں لگا جیسے برسوں کی اندھیری رات کے بعد روشنی کی کرن افق پر نمودار ہوئی ہو۔ گھر میں امید جاگی، ماں کے چہرے پر پہلی بار سکون اترا، اور ہم نے محسوس کیا کہ اللہ واقعی صبر کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔
मेरी पढ़ाई जारी थी, लेकिन साथ ही एक जिम्मेदारी और भी मेरी कंधों पर आ गई। अब जबकि मैं मेडिकल की तालीम से वाबस्ता थी, मैं अपने वालिद की इलाज के सिलसिले में भी ज़्यादा मददगार साबित होने लगी। मैंने अपनी माँ का हाथ मजबूती से थाम लिया। वो दिन रात वालिद की तीमारदारी करती थीं और मैं उनके साथ मिलकर उनकी इलाज की राहें तलाश करने लगी। पहले तो हम बेबस थे, लेकिन अब अल्लाह की मेहरबानी से हालात बदलने लगे थे। भाई की नौकरी से घर के हालात बेहतर हो गए थे। अब हमारे पास इतने वसाइल थे कि वालिद के इलाज के लिए अच्छी सहूलियतें मिल सकें। हमने उनका बाकायदा इलाज शुरू किया, दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी और हर वो सहूलत जिसकी पहले सिर्फ तमन्ना कर सकते थे। माँ की दुआओं और हमारी मेहनत के नतीजे में वो दिन भी आया जिसका हमने कभी सोचा भी ना था। चंद ही महीनों में वालिद की हालत संभलने लगी। जो शख्स बरसों से बिस्तर का कैदी था, वो आहिस्ता आहिस्ता उठने के काबिल हो गया। फिर एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने पहली बार सहारा लेकर बैठना शुरू किया और कुछ ही अरसे बाद वो बोलने के काबिल भी हो गए। उनकी ज़बान पर अल्फाज लौट आए, उनकी आंखों में ज़िंदगी वापस आ गई। ये मंजर हमारी ज़िंदगी का सबसे कीमती लम्हा था। माँ के आंसू खुशी में ढल गए और हमें यकीन हो गया कि अल्लाह के सामने बहाई गई दुआ कभी रायगा नहीं कहती। अब्बा जब बोलने के काबिल हुए तो उनकी बातों में एक नरमी आ गई थी। वो पहले जैसे सख्त और आतिशफिशा मिजाज के मालिक नहीं रहे थे। अब उनके लबों पर खामोशी का पहरा ज़्यादा रहता। ऐसा लगता था जैसे वो अपने गुजरे हुए वक्त पर खुद भी शर्मिंदा हों। भाई का अक्सर पूछते, लेकिन मुझसे बात करते तो नज़रें झुका लेते। यूँ लगता था जैसे दिल ही दिल में वो हम बहन भाइयों से माफ़ी मांग रहे हों। वालदा से अब वो बहुत प्यार से गुफ्तगू करते। जो शख्स पहले ज़रा सी बात पर उन्हें जलील कर देता था, अब उन्हें देखते ही नर्म लहजे में बात करता, जैसे अपनी कोताहियों का मुदावा कर रहा हो। हमारे लिए ये मंजर हैरान कुन था। वही वालिद जो कभी सख्ती और गुस्से की अलामत थे, अब एक खामोश और नादिम से इंसान लगते थे। इनकी ये तब्दीली हमारे दिलों पर बोझ तो कम ना कर सकी, मगर ये एहसास ज़रूर दिलाया कि शायद वो अपने माजी पर शर्मिंदा थे। मैंने अब्बा का इलाज मज़ीद आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया। कुछ और माहिर डॉक्टरों से रब्ता किया और उन्हें साथ लेकर अस्पताल जाने लगी। जब वो मेरे साथ होते तो रस्ते भर मुझसे बातें करते। उनके लबों पर अब कोई सख्ती नहीं रह गई थी, बल्कि नरमी और शर्मिंदगी के साए थे। अक्सर वो रस्ते में माजी का जिक्र छेड़ देते। वो तल्ख दिन याद करते जिनमें उनकी सख्तियों ने हमें जीते जी कैदी बना रखा था। उनकी आवाज़ भर आ जाती और वो आहिस्ता आहिस्ता कहते, बेटी मेरी गलतियों को माफ़ कर दो, मैंने तुम सबके साथ सख्ती की। ये अल्फाज सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते। यादों का सारा बोझ दिल पर उतर आता। वो सारी रातें, वो सारी सिसकियाँ, वो डर और घुटन सब एक पल में ताज़ा हो जाता। लेकिन साथ ही एक सुकून भी मिलता कि आज वो बदल गए हैं, आज वो अपनी कोताहियों को मान रहे हैं। मैं अब्बा का हाथ थामकर उन्हें तसल्ली देती, अब्बा आप परेशान ना हो, सब ठीक है, हमने सब भुला दिया है। मेरी ये बातें सुनते हुए उनके चेहरे पर सुकून फैल जाता। वो खामोशी से खिड़की के बाहर देखते रहते, जैसे दिल में बरसों के बोझ को हल्का कर दिया हो। चंद ही महीनों में उनकी सेहत बेहतर होने लगी। अब वो चलने लगे थे, सहारा लेकर ही सही मगर अपने कदमों पर। हमारे लिए ये मंजर किसी मोजज़े से कम ना था। वो शख्स जो कभी बिस्तर पर कैद था, आज चल रहा था और उसकी ज़बान पर नरमी के साथ दुआओं के अल्फाज थे। वक्त गुजरता गया और हमारी छोटी बहनें भी कॉलेजों तक पहुंच गईं। अब्बा को ये देखकर खुशी होती कि उनकी बेटियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। वो अक्सर उनके साथ बैठकर बातें करते, हाल चाल पूछते, मशवरे देते। घर का वो माहौल जो कभी डर और खौफ से भरा होता था, आहिस्ता आहिस्ता गुलों की खुशबू से महकने लगा। लेकिन एक कमी हमेशा उनके दिल को खाए जाती। वो हमारे भाई को बहुत याद करते। अक्सर कहते, बेटे को देखने को दिल करता है, पता नहीं कब आएगा। फ़ोन पर जब भाई से बात करते तो उनकी आवाज़ में एक अजीब सी बेकरारी सुनाई देती। वो बार बार कहते, बेटा दिल चाहता है तुम्हें देखूं, कब आओगे। भाई अपनी मसरूफियत और दूरी के बायस हमेशा बात को टाल देता। कहता, अब आप फिक्र ना करें, बस जल्दी आ जाऊँगा। अब्बा इस जवाब पर खामोश हो जाते, मगर उनकी आंखों में इंतज़ार की चमक और उदासी दोनों झलकने लगती। यूँ लगता है जैसे वो दिन गिन रहे हों कि कब उनका बेटा घर की दहलीज पर कदम रखेगा और वो उसे अपनी बाहों में ले सकेंगे। इधर मेरी ज़िंदगी ने एक नया रुख लिया। मेरी मेडिकल की तालीम मुकम्मल हो गई और अल्लाह के फजल से मुझे स्पेशलाइजेशन में दाखिला भी मिल गया। साथ ही एक बड़े अस्पताल में अच्छी जॉब मिल गई। आमदनी बढ़ने लगी और घर के हालात दिन ब दिन बेहतर होने लगे। भाई भी बैरून मुल्क दिन रात मेहनत कर रहा था। वहाँ उसने काफ़ी रकम जमा कर ली थी, लेकिन इस बार उसने हम सब के लिए एक ऐसा सरप्राइज सोच रखा था जिसने हमारी आंखों में खुशी के आंसू ले आने थे। हमें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। एक आम दिन था, हम सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हमने दरवाज़ा खोला और सामने हमारा भाई खड़ा था। हम सब सकते में आ गए। पहले यकीन ना आया कि ये ख्वाब तो नहीं। अब्बा की आंखें खुशी से भर आईं। वो बेख्तियार उठने की कोशिश करने लगे। हम सब बहन भाई लपक कर उसके गले लग गए। घर के अंधेरों में जैसे अचानक रोशनी भर गई हो। भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आया हूं तुम सबको देखने, पक्का पक्का नहीं, बस चंद दिन की छुट्टियां हैं।
लेकिन ये चंद दिन हमारे लिए बरसों की खुशियों से बढ़कर थे। वो लम्हा हमारे लिए किसी ईद से कम न था। अब्बा जैसे ही भाई के सामने बैठे, उनकी आंखों में बरसों की कमी, महरूमियां और पछतावे झलकने लगे। वो बार बार उसे देखते और यूं लगता जैसे दिल ही दिल में सोच रहे हों, क्या ये मेरा वही बेटा है जिसे मैंने सख्तियों के साए में बड़ा किया था। अब्बा उससे ढेरों बातें करते, माजी की बातें, हाल के हालात और मुस्तकबिल की उम्मीदें। भाई खामोशी से सुनता, कभी मुस्कुरा देता और कभी एहतराम के साथ जवाब देता। अब्बा हैरान रह जाते कि ये वही बेटा है जो उनकी सख्तियों में भी बगावत न कर सका, बल्कि सब्र और हौसले से आगे बढ़ गया। भाई की शख्सियत हम सब बहनों के लिए किसी सहारा देने वाले बाप से कम न थी। उसने हर मोड़ पर हमें संभाला, कदम कदम पर साथ दिया। जहां हमें एक बाप के कंधे की जरूरत महसूस हुई, वहां भाई ने अपना कंधा आगे कर दिया। जहां हौसले की जरूरत पड़ी, वो हमारे सामने ढाल बनकर खड़ा रहा। हमें कभी बाप की कमी महसूस ना होने दी। वो न सिर्फ हमारा भाई था, बल्कि हमारा दोस्त, हमारा रहनुमा और हमारे ख्वाबों का मुहाफिज था। सबसे बढ़कर उसकी सबसे बड़ी नेकी ये थी कि जिस बाप ने बचपन में सख्ती की, रोक टोक की, खौफ का माहौल दिया, उसी बाप के साथ वो आज मोहब्बत और अदब से पेश आ रहा था। कभी उनकी बात काटता नहीं, कभी तलखी नहीं दिखाता, बल्कि यूं बर्ताव कहता जैसे अब्बा हमेशा से उसके सबसे बड़े मोहसिन रहे हों। यही उसकी आला ज़र्फी और नेक नियति थी, और शायद यही वो नेकियां थीं जिनकी बरकत से अल्लाह ने उसे तरक्की अता की, रिज़्क में कुशादगी दी और इज्जत व मकाम बख्शा। भाई आया हुआ था, लेकिन उसके अंदाज बदले बदले से लगते थे। कुछ दिनों से वो खासा मसरूफ रहने लगा था। सुबह निकल जाता और शाम को वापस आता। अब्बा अक्सर फिक्रमंदी से कहते, बेटा छुट्टियां गुजारने आए हो, हमारे साथ बैठा करो। भाई मुस्कुराकर बात टाल देता, अब्बा बस कुछ काम है, फिर आपके साथ बैठूंगा। हम सब बहन भाई भी सोच में पड़े हुए थे कि आखिर वो किस चक्कर में लगा है। चंद दिन यूं ही गुजर गए। फिर एक दिन उसने हमें कहा, आज सब तैयार हो जाओ, मैं आप सबको बाहर लेकर जा रहा हूं। हम हैरान थे, ये भाई का पहला मौका था कि वो हमें यूं इकट्ठा कहीं बाहर ले जाना चाह रहा था। जब घर के दरवाजे से बाहर निकले तो हमारी आंखें हैरत से खुल गईं। सामने एक चमकती दमकती नई बड़ी गाड़ी खड़ी थी। वही भाई, वही बेटा जिसे हमने बरसों पहले खाली हाथ रुखसत किया था, आज अपने प्यारों के लिए ये खुशी लेकर आया था। अब्बा के चेहरे पर उस लम्हे के तासुरात देखने वाले थे। आंखों से आंसू छलक पड़े। वो बार बार भाई को देखते और सर झुकाते जाते। हम बहनें भी सकते में थीं, खुशी और जज्बात के मिले जुले तूफान में डूबे हुई। घर का माहौल जो कभी खामोशियों और खौफ से भरा रहता था, आज हंसी, हैरत और खुशियों की चमक से जगमगा रहा था। मैं दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। सोच रही थी, या अल्लाह, तूने हमें कितनी आजमाइशों से गुजारा, हम पर मुश्किलें डाली, मगर वो सब हमारी हिम्मत आजमाने के लिए थी। ये दुख दरअसल खुशियों के दरवाजे खोलने की कुंजी थे। मेरी सोचों का सिलसिला चल ही रहा था कि भाई ने आहिस्ता से कहा, सब बैठ जाएं। हम गाड़ी में बैठ गए। भाई ने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी बढ़ा दी। सड़कों पर रोशनियों के साथ साथ हमारे दिलों में भी उम्मीद की किरणें जल रही थीं। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़ी शानदार कॉलोनी में दाखिल हो गई। खूबसूरत बंगले, कुशादा सड़कें और हर तरफ रोशनी का सा समा। हम सब बहन भाई एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। ये कहाँ आ गए हैं हम? भाई खामोश था, मुस्कुराता भी नहीं, बस एक सुकून सा उसके चेहरे पर था। यूं लगता था जैसे कोई बड़ा राज अपने सीने में छुपाए बैठा हो। पीछे नजर डाली तो अम्मी की आंखों में नमी थी। वो खिड़की से बाहर देखती जा रही थीं और आहिस्ता आहिस्ता आंसू पलकों से बह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो ये मनाजर देखकर माजी के उन दिनों को याद कर रही हूं जब घर अंधेरों और गमगीनी में डूबा रहता था, और आज अल्लाह के करम से सब मंजर बदल गए थे। गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। भाई ने गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता रोक दी। हम सब की नजरें खिड़की से बाहर देख रही थीं कि आखिर कहाँ रुके हैं। सामने एक शानदार, खूबसूरत और रोशन नया घर खड़ा था। वो घर जिसके ख्वाब हमने सिर्फ दूसरों के लिए देखे थे। भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो, यह है आप सबका नया घर। इस एक जुमले ने जैसे सबके दिलों में बिजली सी दौड़ा दी। हम सब सकते में आ गए। फिर अचानक समझे कि ये वही राज था। यही वजह थी कि वो दिन रात मसरूफ रहा। गाड़ी और ये नया घर, ये था उसका मिशन, उसका सरप्राइज, उसकी मोहब्बत। अम्मी ये मंजर देखते ही फूट फूट कर रो पड़ी। आंसुओं के साथ लबों पर शुक्र के अल्फाज थे। भाई लपक कर उनके करीब गया, उनके हाथ चूमे और कहा, अम्मी, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। अब्बा कुछ फासले पर खड़े थे, चेहरा बोझल, आंखें नम और बदन खामोश। यूं लग रहा था जैसे दिल ही दिल में माजी के गुनाह गिन रहे हों, जैसे वो सोच रहे हों कि ये सब खुशियां उनके अपने हाथों क्यों रुक गई थीं। वो इस वक्त किसी मुजरिम की तरह गुमसुम खड़े थे, और इधर हम बहनें किसी परिंदे की तरह खुशी से उड़ती फिर रही थीं। कभी सेहन देखती, कभी कमरे, कभी बालकनी। हंसी, शोर, कह कहे घर की दीवारों से गूंजने लगे। वो लम्हा ऐसा था जिसने हमें एहसास दिलाया कि अल्लाह की आजमाइशों के बाद हमेशा खुशियों की सुबह तुलू होती है। फिर वो वक्त भी आया जब वही रिश्तेदार जो कभी हमें पूछते तक ना थे, हमारे दुख दर्द में हमारे साथ ना खड़े हुए, अब रोज़ हमारे घर आने लगे,
खोखली मोहब्बत, मसनूई मुस्कुराहटें, झूठी हमदर्दी और बनावटी बातें साथ लाते। हम सब हैरत से देखते कि ये वही लोग हैं जो माजी में तंज करते थे, हमें कैदी कहते थे और हमारी तकलीफ़ों का तमाशा बनाते थे। मगर अब हालात बदले थे। अल्लाह ने हमें इज्जत दी थी, आसाइशें अता की थी, हमारी जिंदगियों की काया पलट गई थी। मैं हर बार उन्हें सब्र से मिलती, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाती, दिल ही दिल में सोचती, चलो खैर है, यही दुनिया का दस्तूर है। ताकत हो तो सब करीब आ जाते हैं, कमज़ोरी हो तो सब मुंह मोड़ लेते हैं। आज मैं एक कामयाब सर्जन हूँ, 2 प्यारी बेटियों की माँ। मेरी सारी कायनात अब यही नन्हे फूल हैं। अम्मी और अब्बा मेरी बेटियों से बेहद मोहब्बत करते हैं। दादा दादी की शफकत का साया उन पर छाया रहता है। जब वो हंसती हैं, खेलती हैं, तो मुझे यूं लगता है जैसे ये सब खुशियाँ शायद अल्लाह ने मेरे बचपन की कमी पूरी करने के लिए दी हैं। मैं अपनी बेटियों के बचपन को सबसे कीमती ख़जाना समझती हूँ। उन्हें किसी तकलीफ़ के करीब भी नहीं जाने देती। हर लम्हा उन्हें प्यार और तहफ़्फ़ुज़ में लपेटे रखती हूँ। लेकिन जब मैं उनके मुस्कुराते चेहरों को देखती हूँ तो मेरे दिल के किसी कोने में माजी की वो तल्ख यादें फिर से जाग उठती हैं। वो ज़ख्म जो बचपन में लगे थे, जिनकी चुभन शायद हमेशा बाकी रहेगी। फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे वो ताकत दी कि मैं अपनी औलाद के लिए वो सब कुछ कर सकी जो कभी मेरी नसीब में ना था। यूँ मेरी कहानी ये पैगाम देती है कि मुश्किलें कितनी भी कड़ी क्यों ना हो, अगर सब्र और हिम्मत हो तो वक्त एक दिन बदल ही जाता है और अंधेरों के बाद हमेशा रोशनी ज़रूर आती है।